Hello everyone, Namaste. Welcome to Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash, and here we'll be discussing about the current affairs for UPSC CSE 2025. So if you remember the previous plan that I have shared with you, ठीक है, उस पूरे प्लान में एक्चुअली जो आपको बातें बताई गई थी, दैट वाज द बिगनर्स गाइड. दिस वाज द सेशन दैट आई टुक एंड आई टोल्ड यू अबाउट कि इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर और इफ यू हैव सम बेसिक्स डन, हाउ डू यू प्रोसीड विथ योर GS subjects in which month, like what can be a tentative schedule for you. There I did talk about the current affairs. Now that I have talked about the current affairs, it is my responsibility to address the point that how you can cover the current affairs, and that is why I am coming up with this particular video, wherein we'll be seeing couple of things related to current affairs. Uske jitne bhi dimensions ho sakte hain, that is what we are going to cover. But before that, now I had recorded this video already, and it was supposed to be shared on the morning of Sunday, but unfortunately on Saturday night, as you must be aware about, a tragic incident happened in the old Rajendra Nagar, Delhi, and the students belonging to UPSC fraternity. So I consider them as one amongst us, and any one of us could have been there. Like if I was a student, I was studying there, or any other student, like it could have happened to anybody, and that shattered. So I kept that video. Firstly, I thought that I would upload that, but I really wanted to just talk a little bit about it, not taking much of your time because that's a topic that would be dealt definitely separately in another video. So I'm re-recording this video. And firstly, my heartfelt condolences to the ones without any fault who had to give up their lives. And we cannot imagine what is going on with their family. हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है. मैं थोड़ा रिलेट सिर्फ इसलिए कर पाती हूँ बिकॉज वॉट इज मेंट और फेल्ट बाई एन अनटाइमली डेथ is what I have also felt in the family a couple of years ago, and that led me to very severe issues, mental health issues, and it took a lot of time and still not out of it, but at least you start living your normal life, so that happens, but somewhere it stays deep with you, and that is why I am probably able to relate, when we have so much of dreams, and most importantly, this was not their fault. And this was not even nature's fault. So you cannot even question nature because it was not just a natural disaster. Okay? It was the human impact that was caused because of the natural disaster. So actually usko fault pe nahi rakh sakte. There are, in my opinion, there are many stakeholders जिनकी negligence के वजह से ये रहा है. Definitely the particular coaching institute. लेकिन the point is there is not just one institute. ये incidentally उनके साथ हो गया. It could have happened in any other institute as well, because illegal basement library जो चल रही हैं या फिर illegal इस तरह से basement में classrooms चल रही हैं, that is not something that is acceptable. Of course MCD governments पे तो मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है, वो state government अलग होगा बात, LG की बात अलग आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात अलग आएगी, देन ऑपोजिशन पार्टी की बात अलग आएगी. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एवरीवन इज एट फॉल्ट. ठीक है, कुछ कह नहीं सकते इसलिए क्योंकि हम कह रहे हैं, बच्चे हमारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 दिन से वहाँ रोड पर हैं. दोज ऑफ अस हु कुडंट जॉइन देम ऑफलाइन, हम ऑनलाइन अपनी तरफ से जो भी पिटिशंस को लेकर बात कर पा रहे हैं, मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, और इस सब प्रोसेस में कामनेस मेंटेन करना इज़ ऑल्सो एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. बट दिस इज़ समथिंग दैट आई वुड ऑल्सो पॉइंट, बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फ्रेटर्निटी एंड हैविंग बीइंग स्टडीड इन दोज लेन्स एज अ स्टूडेंट and having gone to those lanes to have asked about job opportunities in those very reputed coaching institute, but I'm very thankful that I'm not a part of it. Whatever little smaller venture I have of my own, I'm happy with that. At least I have integrity, and I really think कि खुद को पहले मुझे अभी देखना है कि whatever I'm doing is right or wrong, and if I know कि ठीक है, मेरे कुछ भी काम से किसी और को harm नहीं हो रहा है, at least I can carry on my work with that peace and contentment. I hope the justice prevails. I know मेरे वीडियो की रीच बहुत नहीं जाएगी. I know व्यूज़ हार्डली मिलेंगे, और यहाँ पे बात व्यूज़ उस सेंस में आती नहीं है कि ये वीडियो कितना पॉपुलर होना है या नहीं होना है, और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र्स की भी होती है, इफ़ यू आर फॉरवर्डिंग द राइट मैसेजेस और नॉट. ठीक है, एंड as a user also now we need to be very careful about, as a student firstly we need to be very careful about हम कहाँ रहना चूज़ कर रहे हैं, हम
कहाँ रहते हैं, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है किस तरह के इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो। एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी इन माय ओपिनियन वुड बी, देखो इन्वायरमेंट की जहाँ तक बात है ना, अब सड़क को गंदा करना, प्लास्टिक बॉटल्स फेंक देना, ऐसी सारी चीज़ें सड़क पर डाल देना जिससे ड्रेनेज सिस्टम जो ऑफ कोर्स इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एमसीडी कि वो क्लीन होना चाहिए था, बट एट द सेम टाइम आखिर फेंका तो लोगों ने ही होगा ना। अब बी इट अबाउट द स्टूडेंट कम्युनिटी और द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज, ठीक है, चाहे शॉपकीपर्स हो, वहाँ तो भर के जो लोग वहाँ गए उनको पता है हाउ द लेन्स आर एंड व्हाट शॉप्स एंड एवरीथिंग आर देयर। तो मुझे लगता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट इज़ ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ। बाकी since the video is on a particular topic and the students were requesting me to put forward this video because the plan actually starts from August and they need to understand कि August से वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। So before August I had to give that to them and which is sensible as well because सब कोई पढ़ाई रोक के तो नहीं बैठ सकते ना, this doesn't make sense. But I really hope the justice prevails, the authorities take required actions और ये कोई 2 दिन का जोश भर के बाद ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। आई होप एक, बिकॉज आई अंडरस्टैंड एक मास मूवमेंट को सस्टेन करना बहुत लंबे वक्त तक इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन एट द सेम टाइम अब अथॉरिटीज़ को पता है ना कि पीपल व्हाट आर द डिमांड्स, व्हाट आर द रिक्वेस्ट, नो दैट कैन बी टेकन ओवर। तो बच्चे खुद हट जाएंगे अगर उनकी डिमांड्स के लिए उनको अश्योरेंस दे दी जाती है दैट इट इज़ गोइंग टू बी कंसिडर्ड। बच्चे खुद कोई शौक से नहीं बैठता है, बट कोई चॉइस नहीं होती। सो आई जस्ट रियली थिंक एंड होप एंड प्रे and I wish my friends who are already in the services, I just hope काश उन्होंने भी आवाज़ उठाई होती because most of them also had prepared from the same areas, you know, the same coachings who are in those lanes and everything, but unfortunately किसी से कुछ response नहीं आ रहा है, which is absolutely unfortunate। आप select हो गए हो, आप मज़े में हो, ऑफिस में हो, आपको अच्छी facilities मिली है, बहुत अच्छी बात है, congratulations to you। But in my opinion then even after you have cleared this exam which is the toughest, अपने जीवन में कुछ नहीं करा if you do not have the audacity to come forward and talk about it। चलो ज़्यादा मत करते, एक लाइन ही बोल देते तो शायद वो भी, चलो खैर ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, सबको सुधार तो सकते नहीं ना बैठकर, तो हम अपना काम करते हैं। So let's talk about the current affairs for UPSC CSE 2025. The coverage would be on different topics like how to cover, from where to cover, for which months to cover, and are they really relevant, ठीक है, yes and no, of course the aspects we'll see, and if they are, how much. Firstly, so I'll take this into different order. Firstly, let's talk about which months to cover. So if you are targeting 2025, in my opinion, now देखो अब UPSC में क्या होता है, ये current का actually कोई मतलब बचा नहीं है, because what they really focus is on the contemporary affairs which primarily means last 2-3 कभी कभी तो 5 साल पुराना कोई एक टॉपिक पूछ दिया जाता है, कोई एक वर्ड कभी न्यूज़पेपर में आया था, so they ask. It's not possible for us to do all of that. So the bare minimum that I'm telling which should be done mandatorily is from the months January 2024 to April 2025, ठीक है, ये तो bare minimum है जो आपको करना है। If you can go a little ahead because again it based on if your static has been done by far or not, या कितना हुआ है, ठीक है, उन सब factors पे depend करता है। So if possible you can also take it from mid of 2023 till end of 2023, ठीक है, तो almost इसमें क्या हो जाएगा, 2 years coverage हो जाएगा, but at least this much is like non-negotiable, ये तो आपको करना ही है, this is what you have to do, ठीक है। तो I think you're clear on what months to cover based on your level of preparation, go ahead with that. What about the sources, from which sources to cover? I would personally recommend newspapers. I would tell you the reasons also as we proceed. Monthly magazines are another sources and then some people don't even do either of them. So वो last में जो annual compilations होते हैं of different any institute they prefer that, ठीक है। How to do from either of these sources? I will just take the topic in the coming slides. What about the relevance of current affairs? Are they relevant? Extremely. ठीक है, yes they are relevant very much. How and to what extent we'll just see. अब समझते हैं, पहले तो रेलेवेंस पे बात करते हैं क्योंकि फिर तभी आगे आपको सुनने में इंटरेस्ट भी आएगा ना, तभी यू विल हैव सम सेंस ऑफ गोइंग अहेड कि आगे सुनना भी है कि नहीं सुनना है। फर्स्टली लेट अस सी फॉर प्रीलिम्स। देखो डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ठीक है। आई डोंट से दैट स्टैटिक्स आर नॉट, स्टैटिक्स हैव a good enough weightage, almost little higher than the current affairs as well. Many people clear it only on the basic of statics as well.
स्टिल आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन करंट अफेयर्स फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. सुन लो तो आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्टली डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू वुड सी आर आस्क्ड इन द पेपर, चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस के हो. अभी जैसे देखो पॉलिटी में कोई भी लेटेस्ट इशू होगा, सो इवन इफ द स्टैटिक क्वेश्चंस आर आस्क्ड पॉलिटी के, इकोनॉमी के, ठीक है, कल्चर के, एनवायरमेंट के, दे आर एक्चुअली मोस्टली, I won't say all 100%, but mostly derived from some current affairs background. कुछ उसमें चल रहा होता है related to it, then only it comes. For instance, 2023 के पेपर में there were 2 questions on presidential election. So that was a year which was about presidential election, and even though one of that question was, of course, both of them were static, but one was pretty about like how the what is the manner of election of president, ठीक है, which is given in constitution also and given in your basic standard books as well. बट स्टिल पीपल couldn't solve दैट बिकॉज उन्होंने कुछ अजीब ही डेटा उठा के पूछ लिया था, अजीब ही फैक्ट पूछ लिया था, कंपैरिजन बिटवीन 2 स्टेट्स अबाउट द डेटा, एंड इट वॉज डिफिकल्ट. एंड ऊपर से ऑप्शंस वर ऑल्सो लाइक पेयर वाइज, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर. सो इवन इफ दैट वॉज अ स्टैटिक क्वेश्चन, द रीजन वॉज अ करंट अफेयर इशू. ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं. अभी मुझे जो भी स्ट्राइक कर रहा है, सो आई एम क्विकली टेलिंग यू दैट. अभी गवर्नेंस में लेटेस्ट उठा लो, गवर्नेंस में मान लो बिल्स हो गया, स्कीम्स हो गया, ठीक है. सो लेटेस्ट जो भी रहता है, या फिर एनी स्कीम विच वॉज अर्लियर बट हैज़ अ करंट रेलिवेंस, वो पूछा जाता है. आयुष्मान भारत को लेके पूछ लेते हैं, मातृत्व योजना को लेके पूछ लेते हैं. अभी देखो बिल में, अभी ठीक है, विमेन रिजर्वेशन पे जो बिल आया, ठीक है, नारी शक्ति संविधान, उसको लेकर के क्वेश्चन था इस बार, बहुत क्लियर क्वेश्चन था. दीज आर जस्ट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. ये 2024 की बात मैं कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 2024. कमिंग टू IR, IR में तो मोस्टली प्रीलिम्स में क्या ही पूछते हैं, दे टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स इशू इंक्लूडिंग द मैप्स एरिया, ठीक है. अब मैप्स अगेन फॉर्म्स अ पार्ट अदरवाइज ऑफ स्टैटिक. अगर आपने हर मैप को बहुत अच्छे से करा है तो बट अभी आप लेटेस्ट उसमें उठा के देख लो, बॉर्डरिंग कंट्रीज विद अफगानिस्तान, व्हेन द इशू वाज गोइंग ऑन इन अफगानिस्तान, ठीक है. बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ यूक्रेन, व्हेन इशू वाज अबाउट यूक्रेन. G20 पे कितने बार क्वेश्चन, G20 के मेंबर्स ऑल्सो, G20 का like the whole about the platform and everything directly taken from the website. तो ये सब कहाँ से आ रहा है? These are the things going on and that is why they are asking you. Coming to economy, economy तो कि it is mostly about current affairs. कुछ भी नया अगर आ रहा होगा तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है. Static conceptual questions are also there, but again they have some relevance, some derivation from a current affair background. Environment, science and tech, geography, I don't think I need to tell you. ठीक है, there are certain geography questions which are static. Even science and environment में if you are not clear with your statics, it's difficult to go ahead with the environment question. लेकिन अब मान लो उन्होंने स्पेसिफिक टर्म पूछा है, स्पेशली इकोनॉमिक में या इन्वायरमेंट में या साइंस एंड टेक में, and it's not always easier for us to be able to derive the meaning of the word from the options. But अगर आपने वो टर्म कहीं रैंडमली पढ़ लिया होगा तो वो पूछे जाने के बहुत चांसेस होते हैं. इवन कल्चर में यू वुड से द क्वेश्चंस आर ऑफ स्टैटिक नेचर. मान लो रामानुजा पे क्वेश्चन आ रहा है, सोमनाथ टेम्पल पे क्वेश्चन आ रहा है, सम फिलोसफी पे क्वेश्चन आ रहा है, बट उसका बेसिस क्या होगा कि वो टेम्पल हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर सम रीज़न, ठीक है. अभी जैसे पार्लियामेंट हाउस में वो था कि सर्क्यूलर का है तो एक टेम्पल के बारे में पूछ दिया गया था, और दे वुड से कि किसी स्टैचू को प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है तो उनकी फिलॉसफी, जिनके स्टैचू को करा है उस फिलोसोफर की फिलॉसफी पे वो क्वेश्चन पूछ देंगे. सो अगेन दैट इज स्टैटिक, लेकिन द डेरिवेशन इज फ्रॉम करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर पढ़ने का फायदा क्या होता है कि यू गेट टू अंडरस्टैंड व्हाट स्टैटिक्स ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर इन डिटेल. अदरवाइज स्टैटिक इज ऑल्सो लाइक एन ओशन, बहुत कुछ है उसमें करने के लिए. So that I think should be considered. Coming to the mains part, the relevance of current affairs in the mains examination. देखो ऐसे में examples में बहुत heavily use किया जा सकता है, because if you give old examples, the examiner might or might not be aware about it. If you are talking about something current, ठीक है, and there are high chances कि if they are UPSC examiners, they would be familiar with the current examples, and even you have the leverage of writing it down, as seen recently, as happened recently, etc. GS1 में, ज्योग्राफी में बहुत आप यूज़ कर सकते हो. कोई भी आप जब जैसे डिजास्टर के साथ इसको मैच कर लो ज्योग्राफी को, या कोई भी फिनोमिना हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो. लेट्स से देयर इज अ स्टैटिक क्वेश्चन ऑन अ साइक्लोन, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन ऑन अ साइक्लोन. आपने बता दिया, आपने डायग्राम बना दी, कंडीशन जो भी पूछा है वो बता दिया. बट इफ यू गिव द रीसेंट एग्जाम्पल्स, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे साइक्लोन आ ही रहा होता है उस टाइम पे, ठीक है, पिछले 1-1.5 साल में, तो अगर आपने स्पेसिफिक बता दिया कि इस वाटर बॉडी के पास का ये साइक्लोन का एरिया, ये एरियाज इफेक्ट हुए हैं, तो ऑफकोर्स वो हाफ नंबर कम से कम एक्स्ट्रा तो ज़रूर मिलेगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सोसाइटी में तो इट्स फुल ऑफ लाइक करंट एग्जाम्पल्स यू कैन. और आप सोसाइटी में कोई भी टॉपिक उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, यू विल हैव सम एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स के.
गवर्नेंस, IR, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, ये GS2 का सिलेबस है और आप देख लो हर में उठा के गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, IR तो वैसे ही दे आस्क फ्रॉम द करंट अफेयर्स. इसका तो कोई स्टैटिक सिलेबस ऑनेस्टली मेजरली कवर भी नहीं होएगा. इवन इफ यू प्रिपेयर अ लिटिल बिट राइट अप ऑन ऑल दीज टॉपिक्स, उसका मेजर एंगल जो पूछा जाएगा वो करंट ही पूछा जाएगा. पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर स्पीकर न्यूज़ में है तो चांसेस है स्पीकर से पूछेंगे. अगर गवर्नर न्यूज़ में है तो चांसेस है गवर्नर से पूछेंगे. ठीक है. सो अकॉर्ड एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में तो वो पूछेंगे उससे. GS3 इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक एंड सिक्योरिटी. अब इसमें खुद ही देखो, इकोनॉमी मेजरली करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, एक्चुअली सब इट्स ऑल करंट अफेयर्स लाइक बेसिकली. आप उसमें कुछ एलिमेंट जरूर स्टैटिक का डाल सकते हो बट इट इज़ हेविली करंट अफेयर्स बेस्ड. GS4 ऑफकोर्स अप्लाइड एथिक्स में आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो, यूज़ कर सकते हो. केस स्टडीज एग्जाम्पल्स हो गया. ठीक है, सब में आप यूज़ कर सकते हो. एंड मेनी केस स्टडीज माइट ऑल्सो बी आस्क्ड बेस्ड ऑन कुछ ऐसा रिसेंट इंसिडेंट रहा होगा. सो बेस्ड ऑन दैट दे विल फ्रेम अ हाइपोथेटिकल केस स्टडी. ठीक है, लेकिन उसका बेस तब भी वही होगा. तो इनफैक्ट इफ यू वुड बी राइटिंग एन आंसर, यू आर एक्चुअली लाइक वुड बी इन अ कंफर्टिंग जोन टू कोट अबाउट इट. एंड ऑप्शनल में बहुत सारे ऑप्शनल्स में जो ऑप्शनल पेपर 2 होता है दैट इज़ अ करंट अफेयर. सोशियोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया. आई थिंक दीज आर कपल ऑफ सब्जेक्ट्स एंड और भी होंगे. अभी मुझे एकदम से स्ट्राइक बिकॉज आई डोंट नो द सिलेबस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स बट बारिंग अ फ्यू देयर वुड बी मेनी सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप उनके सेकंड पेपर में इट इज़ लाइक सोशियोलॉजी का आई हैव सीन द सिलेबस वेरी डीपली. पॉलिटिकल साइंस आई नो द सिलेबस की हाँ पूरा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पे भी आपको उसका रेलिवेंस मिलेगा. Now when you try to do it just in the end through a compilation, things become little difficult because you then have to like take a lot of information, and that is why I told you I will be taking all the sources, pros and cons एक एक करके देख लेते हैं. बाकी इट्स योर कॉल, आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो. सोर्सेज में सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूज़पेपर्स की, विच आई हाईली रेकमेंड द न्यूज़पेपर्स. You can take either of them, Indian Express or the Hindu. But if you are reading one paper full, like if you are reading the Indian Express full, take the editorials, just the relevant editorials and the FAQs वाला पेपर, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आते हैं फ्रॉम द हिंदू. इफ यू आर डूइंग द हिंदू फुल देन यू टेक दोज एडिटोरियल्स और एक्सप्लेन्ड पेजेस फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. वो आप मैनेज कर लेना और वो धीरे धीरे आएगा. राइट फ्रॉम day one it cannot happen, and that is why I'll tell you the schedule also, in my opinion, what you can follow comfortably. Let us see some of the pros of the newspapers. Firstly, you get to know about the facts with the context, so it's easier for you to remember. ठीक है, ये facts आपको बाद में बहुत coaching compilations में भी मिल जाएंगे. I am not denying that, but you will not get the context because there is so much to cover. Be it a monthly magazine or annual compilation, उनको बहुत कुछ करना होता है. So it's just the fact. Even if they give you the context, ठीक है, थोड़ा background में कि why was this is news, वो भी बहुत mechanical होता है. न्यूज़पेपर में यू गेट टू डू इट ऑर्गेनिकली. ठीक है, कि आप ग्रेजुअली पढ़ रहे हो और आपको अपने मेमोरी में याद आ ही जाएगा. लाइक आई टेल यू, व्हेन आई वाज सीइंग द 2023 का क्वेश्चन पेपर, आपने वो हनी बी वाला क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ा है आपको याद होगा, वॉबल डांस वाला. ठीक है, दैट वॉज कवर्ड समवेयर इन द हिंदू. कभी आई वॉज नॉट रीडिंग द हिंदू प्रॉपरली बट आई जस्ट केम अक्रॉस द आर्टिकल ऑन इंटरनेट, टेलीग्राम पे किसी चैनल पे, एंड आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग एंड आई सॉ कि अच्छा द हिंदू का एक क्लिप है. And I just read, मतलब it interested me and I just read. That remained in my mind. As soon as I saw that question, I knew, oh, this is the answer. ठीक है, तो कुछ चीज़ जिसमें आप effort नहीं डालते हो, I did not put in any effort for that, but it happens, and there are many such examples. ठीक है. Then concept building, as I said, gradually, because one news, if there is a thematic news, ठीक है, अब जैसे मान लो कोई बिल पर हो गया, कुछ भी ऐसा important news है which develops over a period of time, तो उसमें क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 years यू गेट टू बिल्ड दैट कॉन्सेप्ट. इवन इफ इट्स कपल ऑफ मंथ, इवन 6 to 8 months में यू बिल्ड दैट कॉन्सेप्ट. ठीक है. लॉन्ग टर्म रिटेंशन, एज आई टोल्ड यू, ईजी टू रिमेंबर एंड रिटेन फॉर लॉन्गर टाइम so that you can reproduce in the exam, because you are not appearing for the exam 1 month later. ठीक है, there is a long gap now. Smaller hidden facts आप खुद से निकाल सकते हो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत, मतलब यू आर लाइक फेमिलियर विद द होल आइडिया ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर. बहुत आसान हो जाता है स्मॉलर हिडन फैक्ट्स को फिल्टर आउट कर लेना. अब इफ समबडी एल्स विल डू इट फॉर यू एंड डू दैट, यू माइट फील कि ओ यू आर गेटिंग इट रेडीमेड, बट इट्स डिफिकल्ट टू क्रैम दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. ये समझो. लैंग्वेज से यू आर फेमिलियर,
you get to be familiar with the newspaper's language and it's easier for you to then write a good answer in your GS, स्पेशली SH। और GS में तो छोटे छोटे वर्ड लिमिट्स होते हैं 150 250, तो बहुत कुछ इसमें मैनेज हो जाता है। बट essay is like 1200 words and you need to be having a good command over the language for that matter, ठीक है। हेल्प्स यू इन योर इंटरव्यू ऑल्सो, वो अभी से हो जाएगा धीरे धीरे। ऑफ कोर्स यू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट द लिंकेजेस, लिंकेजेस इन द सेंस सब्जेक्ट वाइज। इकोनॉमी का आर्टिकल है तो उसको हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं क्या, ज्योग्राफी है तो उसको कल्चर से रिलेट कर सकते हैं क्या, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। बट देयर आर ऑफ कोर्स सर्टेन challenges also associated with newspaper reading and therefore many people focus on this and just absolutely skip reading the newspaper. Firstly, initially you might find these challenges, ठीक है। later on हो सकता है नहीं हो जाए, but that's all about developing a habit. Firstly, no doubt that it is time taking in nature. Secondly, syllabus interlinkages initially you will not be able to understand, so you need to have the command over the syllabus first of all, ठीक है। एक बार ये सिलेबस में कमांड हो जाएगा तो ये इंटरलिंकेजेस बहुत आसान हो जाएंगे। दिस इज द सेम इंटरलिंकेजेस दैट आई टॉक्ड अबाउट, सो दिस इज अ प्रो एक्चुअली। ये एक पॉजिटिव है दैट यू गेट टू हैव दैट इंटरलिंकेज प्रोवाइडेड you are familiar with your syllabus and you do it on your own. So it will take time and little bit difficulty you will face initially. Of course, finding relevant material, like you know, जैसा इस मैंने बोला smaller hidden facts. So knowing कि what is important in the newspaper. But again, the answer lies here, syllabus and PYQs. ठीक है, these are the only guide that will tell you कि क्या relevant material हमको निकालना है, और वो धीरे धीरे with practice आ जाता है। आप एक बात समझो ना यार, लॉजिक लगाओ। एनीबडी हु इज़ इवन टीचिंग, ठीक है, मुझे भी अराउंड 7-8 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, बहुत से लोग हैं और 20-25 साल से भी पढ़ा रहे, 10-12 साल से भी, यू हैव ऑल टाइप ऑफ पीपल। यार किसी को भी डे 1 से थोड़ी पता होता है। इवन इफ समबडी हैज लेट्स से अपीयर्ड इन ऑल द 6 इंटरव्यूज, चलो और छोड़ो, एकदम मैं मैक्सिमम केस लेके चल रही हूँ, चलो फॉरगेट, इवन इफ समबडी हैज क्लियर्ड द एग्जाम, उनसे बेहतर तो आप किसी को मानते ही नहीं हो। बाकी लोग की तो वैल्यू ही नहीं है ना दुनिया में, बाकी लोगों को तो कोई कंसिडरेशन नहीं दी जाती है, तो हम ले लेते हैं भैया हमारे टॉपर्स को, ठीक है। अब गारंटी दे लोगे कि उनको सब पता है कि क्या क्या रेलिवेंट निकालना है? उन्होंने भी, दे ऑल्सो वेंट थ्रू दैट प्रोसेस ना, करा तभी तो पता लगा बाद में, ठीक है। एंड यू विल सी कि मैम मेनी टॉपर्स तो डोंट स्टडी द न्यूज़पेपर, वो तो बोलते हैं नहीं करने के लिए, वो तो मैगजीन से कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, सो दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। दिस इज व्हाट आई फील दैट आई एम रिकमेंडिंग एंड देयर इज अ रीजन आई एम गिविंग यू दैट, ठीक है। देयर विल, देखो, क्लियरिंग द एग्जाम हैज मल्टीपल मीन्स एंड वेज। तो वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं कि हमने लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम भी नहीं पढ़ा, और बहुत तो बोलते हैं कि हमने तो एनसीईआरटी कभी छुआ ही नहीं है, बट ज्योग्राफी के तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के भी आते हैं हम, ठीक है। मेनी पीपल से कि हमने तो CSAT कभी नहीं पढ़ा बिकॉज हमें तो थोड़ा बहुत आता था, हमारा बैकग्राउंड था, बट डज दैट अप्लाई फॉर एवरीवन? तो समझो ना यार सामने वाले का क्या कैलिबर है। इफ समबडी हैज डन दैट दे कैन से दैट ओके आई डिड दैट, बट इवन दे शुडंट जस्ट से कि आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है। ये आपको समझ होनी चाहिए, बाकी तो योर विश। सो दिस कैन बी फिगर्ड आउट इफ प्रैक्टिस इज डन। एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज इनिशियली स्पेशली द हिंदू का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट यू एंजॉय रीडिंग द पेपर। आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आप सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अब यार आसान रास्ता होता तब तो सबका ही सिलेक्शन हो जाता, फिर तो बात ही क्या थी। बट दिस इज व्हाट इट इज। Coming to magazines or the annual compilation, of course you can take it for any one institute. If you are not willing to go ahead with that, you have the choice, आप कर सकते हो। Let us see a couple of things, pros and cons mixed, easy to cover, of course, क्योंकि कोई बना के दे रहा है तो बनी बनाई चीज़ तो सबके लिए आसान होती है, but full of facts. So if you are able to remember firstly and retain for long till you reproduce it in the exam, go ahead, who is stopping you, ठीक है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर लॉन्ग टर्म रिटेंशन बिकॉज अगर मुझे फैक्ट मिलते हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मेरे लिए चीज़ें थोड़ी अजीब हो जाती हैं समझना। बट अगेन इट्स योर कॉल, सबका एक अलग लेवल ऑफ कंफर्ट होता है, बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक योर डिसीजन, ठीक है। कमिंग टू द न्यूज़पेपर्स पार्ट, कि कब से कब कैसे आप मैनेज कर सकते हो। सो आई वुड से, बिकॉज आई टोल्ड यू द प्लान फॉर मी स्टार्ट्स फ्रॉम ऑगस्ट, सो आई वुड से कि अगस्त सितंबर में फर्स्टली, जैसा मैंने आपको स्टैटिक प्लान में बताया था इन द बिगनर्स गाइड, इफ समबडी हैज़ नॉट सीन प्लीज डू दैट, द लिंक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को आप स्ट्रॉन्ग करें एंड वहाँ पे जस्ट रीड द न्यूज़पेपर फॉर अवेयरनेस, लाइक यू नो यू शुड जस्ट नो कि अच्छा आज ये ब्रॉडर
डोंट ट्राई टू फिल्टर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जस्ट रीड द न्यूज़ फॉर अवेयरनेस। अक्टूबर ऑन, अब ये मैं इसलिए ऐसा बता रही हूँ बिकॉज जो ये प्लान था उसमें तैयारी 8 मंथ्स में करनी थी। कोई अगर 12 महीने में करेगा तो फिर मैं तो अलग बताती, बट हम 8 महीने को लेके चल रहे हैं, सो मुझे आपको मिक्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन देना पड़ रहा है, ठीक है। देन व्हाट डू यू डू अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अब आपको टिल अप्रैल 2025, ठीक है, सो अक्टूबर 24 ऑनवर्ड्स टिल अप्रैल 2025 आई वुड से कि डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर करो, एंड देन यू नो स्टार्ट नोटिंग द स्पेसिफिक फैक्ट्स, ठीक है। जैसे इमेजेस होते हैं, उसके नीचे कुछ लिखा होता है, जिस नेशनल पार्क में ये रहा, यहाँ से ये हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। किसी कल्चरल स्पेसिफिक टर्म को यू कैन फाइंड, इकोनॉमी रिलेटेड टर्म यू कैन फाइंड, सो दोज इमेजेस, या इफ देयर इज एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स और इन्फोग्राफिक्स एटसेट्रा, सो नोट, कीप नोटिंग डाउन दो स्पेसिफिक, वन लाइनर मतलब 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स, ठीक है। देन एग्जाम्पल्स, कोट्स एंड एनी रेलिवेंट लाइन्स फ्रॉम द एडिटोरियल्स, तो वो हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, तो आई एम ऑलरेडी गिविंग यू दैट टाइम। यहाँ तो आपको कोई नोट मेकिंग करनी ही नहीं है उसमें से, एंड हियर ऑल्सो यू डोंट हैव टू मेक रिगरस नोट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क कि मैम फिर नोट मेकिंग कैसे करें न्यूज़पेपर, मत करो। एनीथिंग विच इज बीइंग इनकन्वीनियंट टू यू, डोंट डू दैट, बट एब्सोल्युटली लीविंग समथिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी एडवाइजेबल। सो इसको तो नोट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा ना, एक बार जल्दी से पढ़ लिया, हाईलाइट कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, डिजिटली और हार्ड कॉपी जैसे भी कर रहे हो, सो जस्ट क्विकली नोट डाउन। इफ यू वांट आई कैन एक्चुअली मेक अ सैम्पल ऑल्सो on the newspaper reading and doing that, so I can show that to you, वो हम कर सकते हैं, but for that you will have to tell me in the comment section कि मैम करवाओ, because you know I just keep doing one sided और कोई response नहीं हो तो सामने वाले का भी इंटरेस्ट नहीं होता, और आप लोगों को वैसे भी बड़े कोचिंग्स के पास ही जाना है, बड़े टीचर्स के पास ही जाना है, क्योंकि बाकी लोग just because you know they are not using money for advertisements, वो बड़े बिलबोर्ड्स नहीं लगा पा रहे, वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट नहीं छपवा पा रहे, डज नॉट मीन कि उनकी क्वालिटी नहीं है। सो दिस इज समथिंग आई एम रियली अपसेट विथ, आई वुड से, तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सो यू नीड टू टेक दैट चार्ज नाउ ऑन योर सेल्फ। एग्जाम्पल्स, कोट्स एंड रेलिवेंट लाइन्स, एज आई सेड, बहुत टाइम नहीं लगता है, वंस यू हाईलाइट यू जस्ट हैव टू कीप नोट इट अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग, जो भी आपका GS 1 to 3 सिलेबस के अंदर का हेडिंग होगा उसके अंदर बस डाल लो। हार्डली डेली के 2 से 3 मिलेंगे आपको न्यूज़पेपर में, कोई बहुत थोड़े ना मिलने हैं, ठीक है, तो बहुत टाइम नहीं लगता है। देन व्हाट अब ये तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स हो गया, बट हमें तो जनवरी ऑनवर्ड्स करंट अफेयर्स करना था, सो जनवरी टू सितंबर पेंडिंग का क्या करोगे। अब न्यूज़पेपर जाके आप वापस तो पढ़ नहीं पाओगे, दैट इज इम्प्रैक्टिकल, ऑल्दो डिजिटली इफ यू हैव द एक्सेस यू कैन गो एंड डू दैट, बट वो प्रैक्टिकली नहीं हो पाता है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लेट्स टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल सिचुएशन। सो फॉर दोज 9 months कवरेज आप चले जाओ आराम से मैगजीन्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि अब आपका बहुत से न्यूज़ वुड बी ऑलरेडी बीइंग रिपीटेड इन दिस मंथ, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, थोड़े बहुत ही होगा, तो बट नाउ दैट यू आर फेमिलियर विद द न्यूज़पेपर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, आपका मिक्स भी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, एंड यू विल हैव द फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन नोटेड ऑल्सो। सो हाउ यू कैन रफली कवर अक्टूबर के महीने में, सिंस यू विल बी स्टार्टिंग, डोंट ओवर प्रेशराइज योर सेल्फ, बिकॉज आपको अक्टूबर का भी महीना कवर करना है, ठीक है, तो फर्स्ट महीने में थोड़ा ओवर बर्डन हो जाएगा। सो सितंबर, क्योंकि आपने जस्ट अगस्त सितंबर में न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, सो यू वुड बी फेमिलियर विद द न्यूज़, now to extract the information either from the newspaper or from the magazine would not be difficult. So अक्टूबर के महीने में आप ये इधर वाला पेंडिंग है, and these are the months that you would be actually doing it, ठीक है। So in the month of October you can do for October and September 1 pending and 1 current, ठीक है। Again November में 1 current and 2 pending, July and August, because of course with time you'll have to increase your frequency ना, नहीं तो फिर सिलेबस कैसे खत्म होगा टाइम तक। देन दिसंबर में मई एंड जून का, जनवरी में मार्च एंड अप्रैल का, फरवरी में जैन एंड फेब का, हो गया सारा पेंडिंग कवर्ड, एंड हियर ऑल्सो यू आर एबल टू कवर इट इन टिल फरवरी आराम से। उसके बाद भी आपके पास मार्च और अप्रैल बचता है, सो वट एवर पेंडिंग का पेंडिंग कुछ भी बच जाएगा उसको यहाँ खत्म कर लो। अरे एग्जाम तो मई में लिखना है ना यार, उसको आगे पीछे शफल करके कैसे भी खत्म कर लो। आई होप आप समझ रहे हो, एंड विथ हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी यू विल बी गुड टू गो विद दिस, इसमें कोई बहुत इशू नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ़ आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अब आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए दैट हाउ टू कवर, फ्रॉम वेयर, लाइक सोर्सेस, विच मंथ्स, रेलिवेंस, मैंने सब बता दिया है। इफ़ यू वुड वांट अ सैम्पल ऑफ हाउ वी कैन डू दैट, एक मेरा पुराना सैम्पल भी है दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पे, बट चलो वो 5-6 साल पुराना है। सो कंसिडरिंग द करेंट पैटर्न, हम छोटा सा वीडियो आराम से आई कैन मेक, मुझे कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। बट अगेन यू विल हैव टू नाउ टेक द लीड।
Now I take your leave for this particular video. I have already given a list of the topics on my Telegram channel on which I would be making video to guide, and I will complete that series. ठीक है, आप अपनी तैयारी शुरू कर लो. प्लीज़ वो पिछला वाला वीडियो ऑन द बिगिनर्स गाइड ज़रूर देख लेना, बिकॉज इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट, इसमें वो पूरे मैंने शेड्यूल कवर करें कि किस महीने में, यू नो, लाइक हाउ यू कैन गो अबाउट इट, कैसे करना है, क्या करना है. देखो ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं. एब्सोल्यूट बिगनर हो तो क्या करना है, सेक्शनल मॉक्स कहाँ से लगाने, PYQs एट्सेट्रा, सब कुछ डील करा हुआ है. So if you do that, I think that's going to be helpful. Now I take your leave. Take care and stay safe.